So, good afternoon, everybody. Uh, so, today again we are going to cover quite a big topic. It's the psychiatric disorders in childhood. So, what is known as child psychiatry. So, we'll start. I'm Dr. Swaleha Mujawar, Assistant Professor, and dealing with a very big subject is again difficult, but we'll first cover some introductory remarks. Then we will see some disorders which are specifically seen in childhood. Like we have mental retardation, pervasive developmental disorder, learning disability, ADHD. These are like the main illnesses which are seen. And then some disorders like elimination, mood, anxiety, psychosis, these are common, so that I have not covered, and these are quite small. So you can go and read. If you have any doubts, you can come and ask. But let us start. So whenever we look at childhood disorders, it starts with infancy, preschool, primary, and adolescence. And if you look at these disorders in this way, then it is easier and less confusing. So disorders which start in infancy are mostly disorders of sleep, feeding, attachment. So we have language disorders, we have developmental delays. Some disorders are there throughout. So disorders which are pertaining to childhood abuse, physical, sexual, or emotional, they can be there anytime. Autism spectrum disorder is seen, or it is identified mostly in the preschool area. So when the child is in preschool time, that is where autism is there. Elimination disorders also are identified when the child starts going to school. In primary school, we see ADHD. This we are going to see in detail later, but just see when it starts. Oppositional deficient disorder, tic disorder, anxiety disorders, conduct disorders, and childhood depression. These are mostly seen in primary school, but it can develop later on also. So in adolescence, we see obsessive compulsive disorder, substance disorders also. So a lot of addictions start in adolescent time. Then psychosis, bipolar, or depression, it can start during adolescent time also. So worldwide prevalence of psychiatric disorders in children is at least 7%. This rate rises in socially disadvantaged and densely populated area. So it can be 3 to 4% after puberty, uh, giving to a roughly percentage of childhood psychiatric problems that require treatment. This goes up to 7 to 10% again. So approximately 7% is what is the prevalence. Now coming to the symptoms. See, when you, oh sorry, oh no, अब वो वापस नहीं जाएगा. Okay. So anyway, according to the developmental principles, a mental disorder results from interaction of a child with the environment. So yes, there are some genetic basis, but environment is very important, especially when we come to developmental disorders. So these relationships are reciprocal. The brain shapes the behavior and the learning shapes the brain. So it's a two-way street, and this is very important, especially in childhood disorders. Mental disorders must be considered within the context of the family, the peers, school, home, community. So whenever a childhood psychiatric disorder comes, or a childhood case comes, we have to look into the family, the school, the home, the community. So whenever we take history, we need to ask all these things also, and we need to look at the bigger picture and not just the patient or not just the child. Taking the socio-cultural environment into consideration,
is essential to understanding the mental disorders in children and adolescents as it is in adults. So, psychiatry is not just looking at the patient, we always look at the socio-cultural environment also. And always remember that children are not miniature adults. So whatever approach you have to adults, same approach cannot be copy pasted in a child. You need to have a very different approach when you're looking at a child versus when you're looking at an adult. So what are the evaluation strategies? What should you keep in mind when you have a child? One is the patient interview. So obviously you're talking to the child, but talking to IQ and education levels are also important. So IQ testing is done mostly in all child cases whenever we get. We can also do projective tests, personality tests. Sometimes we have to do some lab investigations, EEG and MRI also. Apart from this, we need our own observations. So as a doctor, as a nurse, what observations you are making, and then we need to have information from parents and school also. And all this is interconnected. So when you take all this information, you have to collect all this information, and then it goes to your diagnosis or your treatment, whatever is there, it is using all this information. So now coming to the first disorder, that is mental retardation. Okay, so this is a very big chunk of child psychiatry. So let us go into it. What is mental retardation? So whenever we look at mental retardation, we look at IQ scores. So IQ is usually tested using Stanford Binet test. It is the most common IQ test. And whenever we say that the patient has normal IQ or low IQ, what do we mean? We look at, as you can see in this figure, we look at the two standard deviations. So if the patient is two standard deviation below the normal, so all these people are normal scores. If it is below, then we call it as low IQ. It is above 2 standard deviation, it is called as high IQ. So IQ around 84 or around 84 is considered normal. 84 to 130 is around normal. If it starts going below 70, then we call it as mental retardation, or we call it as low IQ. So 1 to 3% is the epidemiology. IQ 70 or less on an individual IQ test is diagnosed as mental retardation. Onset should be before 18 years. So if an adult is coming to you, you cannot diagnose it as mental retardation. Then it is something else. Usually we call it as a cognitive dysfunction. So less than 18 years is your mental retardation. Then we also need delay in two or more adaptive areas. Adaptive area means how the patient adapts to the environment. So self-care, communication, work, leisure, health. In self-care, what we usually ask is कि खुद के कपड़े पहन सकता है क्या, खुद से नहा सकता है क्या, बाल वाल बना सकता है क्या. कम्युनिकेशन मीन्स वी कैन आस्क कि बच्चे को जब भूख लगती है वो खुद से बता सकता है क्या, या उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो खुद से बता सकता है क्या. वर्क, लीजर एंड हेल्थ कम्स लेटर ऑन, बट यूजुअली वी आस्क अबाउट सेल्फ केयर एंड कम्युनिकेशन. So mental retardation, there are many different forms of mental retardation. So different types of classifications or different forms are there, but mostly we classify it as mild, moderate, severe. We can also have an etiological classification, but the etiology is a very long list. So etiological classification becomes a bit complicated.
But if you want to classify it as based on etiology, then we can classify it as trisomy 21 or Down syndrome. Then we have Fragile X syndrome. These are the two most common causes of mental retardation. But we have less common causes also. So we have Prader-Willi syndrome, Angelman's, Williams, Fry-Duchat. All these syndromes will have mental retardation. And all of these are examples of chromosomal abnormalities. So these can be classified as a genetic causes of mental retardation also. We can have problems in metabolism, so phenylketonuria. This can also cause mental retardation. Sometimes we have teratogenic factors. So teratogenic means when the mother was pregnant, like the patient's mother was pregnant, if she had some infections, if she took some drugs which led to genetic malformations in the child. So we have HIV, we have rubella, toxoplasmosis, fetal alcohol syndrome. So again, the list is a very long list. Sometimes they can take medicines by mistake, or if they have some illness and they had to be given some medications and these are causing harm to the baby, then this can also be one of the cause. Sometimes unknown causes are also there. So unknown cause is your last cause, but these are the again some causes of mental retardation. The list is very exhaustive. I've just written the common causes or the most common causes. Coming to mild mental retardation. So mild mental retardation means the IQ is between 50 to 70. So, huh. Mild mental retardation are the most common. 85% of illnesses are 85% of the illnesses are considered under the mild MR. Now, what is seen in mild MR? We have schools, and in schools, if the patient has mild mental retardation, he can do schooling up to 6th standard. So वैसे भी आजकल schools में सबको pass कर रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा difficult हो जाता है, because otherwise we can pick up mental retardation very early also. But if schools are just passing the student, becomes difficult, but the student will have normal studies or will have normal school skills up to 6th standard. After 6th standard, difficulties दिखने मिलती है. So mild mental retardation may be diagnosed very late also. Then social and communication skills develop normally. So these patients have normal social and communication skills, may first be detected in school, may acquire vocational skills and self-support. So these kind of patients, they can do semi-skilled work also. ऐसा नहीं है कि ये इनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है या कुछ हो नहीं सकता है. And they are self-supporting, so they don't need family support or they don't need a psychiatrist support. They can go day-to-day life on their own also. Moderate mental retardation means your IQ is from 35 to 55. These are 10% of the cases that you will see. Social and communication skills are developed, but they are impaired. तो कभी कभी वो नहीं बात कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, बट इनको डेवलप किया जा सकता है. तो काउंसलिंग से या बाकी स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आते हैं, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग आते हैं, तो ये सब करके सोशल स्किल्स डेवलप हो जाता है. इनका डिटेक्शन काफी अर्ली होता है, इवन बिफोर दे गो टू स्कूल पता चल जाता है. एंड स्कूल में अगर जाते भी है तो सेकेंड स्टैंडर्ड के बियॉन्ड तो बहुत मुश्किल होता है. बियॉन्ड सेकेंड स्टैंडर्ड दे कांट डू, बिकॉज कम्युनिकेशन भी इतना अच्छा नहीं होता है, तो बाकी बच्चों के साथ भी उनका इंटरेक्शन ठीक नहीं होता है. एंड टीचर्स विल डेफिनेटली डिटेक्ट दीज वेरी वेरी अर्ली. एंड बियॉन्ड सेकेंड मोस्टली स्कूल में रखते ही नहीं है, उनको बोलते हैं कि आप
दूसरे स्कूल में डाल दो या स्पेशल स्कूल में डाल दो. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. बट दे कैन बी एबल टू वर्क. ऐसा नहीं है कि वो आगे जाके अब स्कूलिंग नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर पाता है. शेल्टर्ड वर्कशॉप्स होती है. तो देर आर सम प्लेसेस जो मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए ही वर्क देते हैं. तो कैंडल मेकिंग, बास्केट वीविंग. तो दीज आर सम एनजीओज और सम प्लेसेस वेयर उनको सिखाते हैं ये काम करना और फिर वो अपने लिए कुछ कमा भी सकते हैं through all these, so which is good. Unfortunately, severe mental retardation में बहुत कम IQ होता है, IQ of 20 to 35. बट अच्छी बात यह है कि दे आर ओनली 3% ऑफ द केसेस. तो नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं इनके, लेकिन they have very difficult time in school. They can hardly read something. कुछ सर्वाइवल वर्ड्स उनको पता होता है, बस इसके बियॉन्ड वो नहीं सीख पाता. तो स्कूलिंग तो स्पेशल स्कूल में ही होता है, नॉर्मल स्कूल में तो ये जाते ही नहीं है. लेकिन स्पेशल स्कूल में भी उनको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मुश्किल से सिखाया जाता है. लाइक सर्वाइवल वर्ड्स की भूख लग रही है, नींद आ रही है, पेन हो रहा है, तो ये सब चीजें ही उनको सिखाते हैं. इसके बियॉन्ड तो वो सीख भी नहीं पाते. दे मे रिक्वायर एलिमेंट्री हाइजीन स्किल्स. तो जैसे रोज नहाना, रोज अपने बाल वाल बनाना, ये सब भी वो कर नहीं पाते, इसमें भी उनको हेल्प लगती है. एंड दे आर अनेबल टू बेनिफिट फ्रॉम वोकेशनल ट्रेनिंग. तो खुद से काम करना या खुद से पैसे कमाना तो काफी इम्पॉसिबल ही बोला जाता है इनके लिए. प्रोफाउंड MR इज IQ लेस देन 20. ये बहुत कम केसेस होते हैं, 1 to 2%. और ये सिवियर मेंटल रिटार्डेशन से भी ज्यादा सिवियर में जाते हैं. तो इनकी जो कैटेगरी है, इनमें सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पाती है. एंड इनमें अ लॉट ऑफ टाइम्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है. तो सेंसरी मोटर एबिलिटीज ना के बराबर ही होती है, तो मिनिमल होती है. दैट इज दैट दे आर नॉट एबल टू मूव देयर लिम्स ऑल्सो, या उनको सेंसरी प्रॉब्लम्स होती है, सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है. तो सेंसरी मोटर प्रॉब्लम्स की वजह से भी हैम्पर होता है. they require constant aid and supervision, they require constant nursing care. तो ऐसे पेशेंट्स को तो डे टू डे लाइफ में भी वो खुद से कुछ नहीं कर पाते. दे रिक्वायर हेल्प इधर फैमिली मेंबर का, नर्सिंग का, या हॉस्पिटल में, या कोई एक होम में उनको रखना पड़ता है. खुद से दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. सो दिस इज योर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन. So coming next to the pervasive developmental disorders, पहले we will look at the clinical features and diagnosis. Treatment more or less overlap होता है, तो treatment हम end में देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि diagnose कैसे करेंगे. तो pervasive developmental disorders, these are disorders with severe and pervasive impairment in some essential developmental areas. मोस्टली रेसिप्रोकल सोशल स्किल्स नहीं होती है, एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है. तो बेसिकली व्हेन विल यू कॉल अ पर्सन एज अ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? जब सोशल स्किल्स नहीं होती है, लैंग्वेज स्किल्स नहीं होते. ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन को हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं, कि कोई भी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है. ये बच्चों में मोस्टली सोशल और लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम होता है. तो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. रेंज ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होता है, जो हम देखेंगे क्या क्या है. एंड इट इज एन अम्ब्रेला टर्म. तो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है, उसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं. और ये अम्ब्रेला के अंडर क्या क्या टर्म्स आते हैं? इसमें आता है एस्पर्गर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, ऑटिज्म. Then we have pervasive developmental disorder not otherwise specified. तो जो ये सब के अंदर नहीं आता है, उसको हम नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड या NOS कैटेगरी में डाल देते हैं. तो इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आती है. तो विल जस्ट सी कि इंडिविजुअल क्या क्या इलनेसेस हैं
बट सारे इलनेसेस में ये तीन चीजें कॉमन होती है, सोशल प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। सो अब लेट अस सी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या आता है। सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रायड, तीन चीजें मिलती है। वन इज लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन, तो हमने देखा था ये पीडीडी में भी कॉमन है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में भी कॉमन है। सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, देन कम्स योर restricted repetitive behavior. ओके, तो आई जस्ट गिव यू अ क्लिनिकल सिनेरियो। जब भी ऑटिज्म का बच्चा आपके पास आएगा तो वो बच्चा एक कोने में बस खेलते रहेगा, एक ही चीज बार बार खेलते रहेगा। तो बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं रहेगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, पेरेंट्स से बात नहीं करेगा, और एक ही गेम या एक ही कोई चीज उसको बार बार करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव बिहेवियर, एंड सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो के बराबर होती है। इट इज डिटेक्टेड वेरी अर्ली, वो हम लोगों ने देखा था चार्ट में। तो प्री स्कूल वाले इसमें पता चल जाता है, बिकॉज जब वो प्री स्कूल में जाता है बाकी बच्चों से बात नहीं करता है, टीचर्स से बात नहीं करता है, तो उसमें बाय 2 to 3 years ऑफ एज डिटेक्ट हो जाता है। प्रिवेलेंस इज 0.6%, बॉयज में ज्यादा होता है कंपेयर टू गर्ल्स, सो बॉयज में इट इज 4 times more common. So, it is a developmental disorder that appears in the first 3 years of life and affects the brain's normal development of social and communication skills. तो आपके जो जो ब्रेन के एरियाज है जो सोशल और कम्युनिकेशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो वाले एरियाज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और इसीलिए ऑटिज्म हो रहा है। Causes, incidents and risk factors. So autism, it is a physical condition, psychological नहीं है, actually brain में कुछ कुछ problems पाई गए हैं। तो it is linked to abnormal biology and chemistry in the brain. The exact causes are still unknown, research चल रहा है। दिस इज अ वेरी एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च, तो बहुत सारा हमें रिसर्च है, जब कोई कंक्लूसिव मिल जाएगा तब वो टेक्स्ट बुक में आने लगेगा। बट अभी हमें इतना तो पक्का पता चला है कि बायोलॉजी में, ब्रेन की केमिस्ट्री में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई है। यूजुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, कोई एक कॉज नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेज है। लाइक ऑल साइकेट्रिक इलनेसेस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एपिडेमियोलॉजी में प्रिवेलेंस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लाइक सारे अम्ब्रेला टर्म्स का देखा जाए तो 1% है, अप टू 25% have grand mal seizures and 50% have non-specific EEG abnormalities. तो जो मिर्गी बोलते हैं, जो बार बार पेशेंट गिर जाता है उसको फिट्स जैसे आते हैं, तो ये फिट्स के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होता है, 25%, एंड ऑलमोस्ट 50% में EEG abnormality मिलेगी, and a lot of them have some degree of mental retardation also. तो mental retardation आप अलग से diagnosis बनाओगे और autism अलग से बनेगा। Boys are affected 3 to 5 times more, that we have seen पहले also. Etiology में again पहले बोला जाता था कि बैड पेरेंटिंग या फ्रिजिड मदर, रेफ्रिजरेटेड मदर, इसके वजह से होता है, बट दिस हैज बिन डिसप्रूवन। अभी इसका कुछ कंफर्मेटरी है नहीं। हेरिटेबिलिटी इज 90%, तो जेनेटिक ज्यादा है साइकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल से। It is associated with a lot of disorders: congenital rubella, prenatal infection, Fragile X, metabolic disorder, tic disorder, OCD, ये सब के साथ एक association मिल रहा है, but again like conclusive proof जब तक मिलता नहीं तब तक के हम बिल्कुल बता नहीं सकते। नाउ कमिंग टू एस्पर्जर्स डिसऑर्डर, तो जो एस्पर्जर्स है इसको बेसिकली हम एक माइल्डर फॉर्म ऑफ ऑटिज्म बोल सकते हैं। अगर मूवी देखी होगी माय नेम इज खान, तो उसमें उसको एस्पर्जर्स ही होता है।
तो इसमें भी आई कांटेक्ट वगैरह कम होगा, बट कम्युनिकेशन हो पाता है बिकॉज वो बात करता है एंड ही इज एबल टू हैव रिलेशनशिप्स ऑल्सो. So Asperger's syndrome is one disorder falling under the umbrella of autism spectrum disorder in which the affected individual shows obsessive attention to detail, social awkwardness रहेगा, difficulty in relating to others, repetitive behavior and highly focused interest रहेगा. तो या तो ट्रेन्स में इंटरेस्टेड है तो ट्रेन्स में इंटरेस्टेड है, बाकी कोई भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, horses, etc. And unlike other autism spectrum disorder, they are quite high functioning. तो उनको high functioning autism या milder form of autism भी बोलते हैं. There is no delay in language or cognitive development, तो ये सब तो normal होता है. Stereotypic repetitive mannerisms या repetitive behavior बोलेंगे. देर इज लैक ऑफ इंटरेक्टिव प्ले और कम्युनिकेशन. तो वही है, जो भी ऑटिज्म के आपको दिख रहे हैं उसका एक माइल्डर फॉर्म आप इमेजिन कर सकते हैं. देर इज इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ रेट्स डिसऑर्डर, ये भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंडर आता है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है. नॉर्मल ग्रोथ होता है फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ, और फिर डिसेलरेशन ऑफ ग्रोथ होता है बिटवीन 4 to 8 months. हैंड वॉशिंग बार बार होता है. स्टीरियोटिपिक पर्पसफुल ऐसे ऐसे हैंड रिंगिंग या हैंड वॉशिंग बिहेवियर हम बोलते हैं. गेट प्रॉब्लम्स होते हैं, सीजर्स हो सकते हैं, ट्रंकल इनकोऑर्डिनेशन. दीज कैन बी एसोसिएटेड इन रेट्स डिसऑर्डर एंड इतना ज्यादा हो जाता है कि बाय 18 years, बाय लेट टीन्स वो व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं एंड दे डाई बाय 30. ये वाला डिसऑर्डर फीमेल्स में ज्यादा दिखता है, जैसे ऑटिज्म या एस्पर्गर्स जो है वो मेल्स में ज्यादा होता है. इसमें म्यूटेशन ऑफ MECP2 जीन होता है विच इज देयर ऑन द एक्स क्रोमोसोम, दैट इज व्हाई फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है. चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, इसमें नॉर्मल डेवलपमेंट होता है फॉर 2 years ऑफ एज, फिर 2 years के बाद वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है. अगेन लैंग्वेज, सोशल कम्युनिकेशन, मोटर स्किल, प्ले, ब्लैडर बॉवल कंट्रोल, ये सब चीजें अफेक्ट होती है. सो दिस इज योर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जो थोड़ा और लेट जाके आता है. देन coming to ADHD. So we are done with autism spectrum disorder. जल्दी जल्दी ADHD देखते हैं क्या है. ADHD है ना, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, तो ADHD का अगर पेशेंट आता है तो वो पहले पता चल जाता है OPD में. इधर उधर भागने वाला अगर बच्चा दिख रहा है, मोस्टली ADHD है. इट प्रेजेंट्स बिफोर 7 years of age. It should persist at least for 6 months. Symptoms should be present in 2 or more settings. So हाँ, अगर बच्चा सिर्फ हाइपर एक्टिव है तो हम ADHD नहीं बोलते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे थोड़े नॉटी भी होते हैं. तो यू हैव टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ADHD कि 6 मंथ से ज्यादा के लिए हाइपर एक्टिविटी है. 2 or more सेटिंग्स में, यानी घर में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, सब सेटिंग्स में वो नॉटी हो रहा है. DSM-4 distinguishes it as attention problem, as hyperactivity problem, एंड अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में भी वो होता है, अडल्टहुड में भी जा सकता है. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि IQ नॉर्मल होता है. मेंटल रिटार्डेशन में और समटाइम्स ऑटिज्म में भी IQ थोड़ा लोअर साइड में होता है. ADHD हैज अ नॉर्मल IQ. So it is again a neurocognitive and behavioral disorder. Starts in childhood, can extend to adulthood also. Prevalence 3 to 5% में है. Associated factors can be difficult temperament, learning disability, pregnancy, prenatal complications can be there in ADHD patients also. कभी कभी फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स के भी रिएक्शन से हो सकता है. तो यू शुड नो द कॉजेज एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स. अब इन अटेंशन में हमें क्या क्या दिखता है.
तो इनअटेंशन मीन्स कि डिटेल्स उसमें डिटेल्स में वो पेशेंट जा नहीं पाता है, ऊपर ऊपर से इज एबल टू अंडरस्टैंड द स्टडीज, स्कूल का वर्क या घर का काम किया जाए, हैज डिफिकल्टी फोकसिंग, नॉट लिसनिंग, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, फॉरगेटफुलनेस, या फिर फॉलो थ्रू नहीं कर पाता है। तो उसको एक लंबा इंस्ट्रक्शंस अगर दिया जाए तो नॉट एबल टू फॉलो थ्रू, डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग, avoids effortful tasks also, loses things, खो जाता है स्कूल में जाके बार बार चीजें खो देता है, पेंसिल या वाटर बॉटल ये सब। तो ये पेरेंट्स की तरफ से काफी डिफिकल्टीज आती है। हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी इज मोर इजीली सीन। तो इसमें क्या क्या दिखता है? पेशेंट इज फिजिटिंग, लीव्स द सीट्स, रन्स, क्लाइम्स, चिल्लाते रहेगा, इज ऑलवेज ऑन द गो, एक्सेसिवली टॉक करेगा, ब्लर्ट करेगा, उसको बोलेंगे कि अपना टर्न वेट करना है तो वो वेट भी नहीं कर पाएगा, इंटरप्ट्स एंड बार बार बीच बीच में बोलते रहेगा। सो एडीएचडी को अगर देखा जाए तो एकेडमिक प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट कभी कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है। सेकेंडरी टू एडीएचडी इंजरीज हो सकती है, क्योंकि वो पूरा टाइम भागते रहेगा, टकराते रहेगा। एडोलेसेंस में या जब बड़ा हो जाता है तो स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज भी हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, क्योंकि बहुत फास्ट चलाते हैं या फोकस नहीं कर पाते हैं। लीगल डिफिकल्टीज भी होती है। तो दैट इज वाई ट्रीटिंग एडीएचडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, एडल्ट सब में ही प्रॉब्लम्स होता है। Now coming to the diagnosis. So ADHD is more difficult to diagnose in the early childhood. जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है तब थोड़ा इजी होता है। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर्स आते हैं, वो क्वेश्चनर्स हम पेरेंट्स को, टीचर्स को देते हैं, और उसमें से इवैल्यूएटिंग फॉर एडीएचडी इज मच मोर इजियर। एंड ऑब्जर्वेशन इन क्लिनिकल सिटिंग मे और मे नॉट शो द सिम्टम्स डिस्क्राइब बाय पेरेंट्स। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी पेरेंट्स को वो क्वेश्चनर दे सकते हैं, टीचर्स को वो क्वेश्चनर दे सकते हैं, उस पे से हमें एक बेटर आइडिया आता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू इटियोलॉजी। इटियोलॉजी बहुत सारी है। अगेन एनवायरमेंटल कॉजेज है, जेनेटिक कॉजेज है, न्यूरोएनाटॉमिकल, वेरी सिमिलर टू ऑटिज्म और मेंटल रिटार्डेशन। अगेन एग्जैक्ट इटियोलॉजी पता नहीं है, रिसर्च चल रहा है, जब पता चल जाएगा तो देन टेक्स्ट बुक्स में वो आने लगेगा। ट्रीटमेंट पे आते हैं। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन, मेडिकेशन हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक तो पेरेंट्स ही रेडी नहीं होते कि इतने छोटे बच्चों में साइकेट्री मेडिकेशन दे रहे हैं। तो मेडिकेशंस आर एम्ड एट रिड्यूसिंग स्पेसिफिक टारगेट सिंड्रोम या कोमॉर्बिडिटीज। जैसे उसको एपिलेप्सी है, फिट्स आ रहा है, तो फिट्स के लिए आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जो है मोस्टली साइकोथेरेपी होता है। तो साइकोथेरेपी में वी हैव इंडिविजुअल थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी में वी हैव प्ले थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी। सिर्फ चाइल्ड को नहीं, फैमिली को भी थोड़ा काउंसिल करना जरूरी होता है। सो फैमिली थेरेपी एंड पेरेंट ट्रेनिंग इज as important as therapy of the child. Then we have behavioral modifications, we have problem solving skills, social skills training. Sometimes group therapy भी अच्छा काम करता है। तो ग्रुप थेरेपी स्पेशली एडोलेसेंस में, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर ग्रुप थेरेपी ज्यादा अच्छा काम करता है। वी हैव मॉड्यूल्स ऑफ इंटरवेंशन। तो ओपीडी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आईपीडी, डे केयर ट्रीटमेंट। वी हैव रेसिडेंशियल एंड कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट्स आल्सो। सो कहाँ पे ट्रीट करना है वो आप इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड कर सकते हैं। मेडिकेशंस में अगर देखा जाए तो वी हैव साइकोस्टिमुलेंट्स। साइकोस्टिमुलेंट्स मोस्टली एडीएचडी के बच्चों में देते हैं टू इंक्रीज देयर अटेंशन। एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं अगर पेशेंट में सेकेंडरी डिप्रेशन है तो, वेरी रेयरली। एंटी साइकोटिक्स, एंटी मेनिक
मूड स्टेबलाइजर्स, ये सब देते हैं अगर बहुत डिसरप्टिव है। अगर आपको हाइपर एक्टिविटी कम करना है या पेशेंट को थोड़ा सिडेट करके रखना है तो वेरी रेयरली वी गिव इट, नॉट वेरी कॉमनली। ADHD child में again it is a combination of behavior therapy, medication, home therapy, school therapy, ये सब का कॉम्बिनेशन करके ही ADHD का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, साइको एजुकेशन इज एसेंशियल कि हम बच्चे को मेडिकेशन क्यों दे रहे हैं और बाकी थेरेपीज का क्या इम्पोर्टेंस है, ये साइको एजुकेशन करना जरूरी है। स्टिमुलेंट्स एंड एटोमॉक्सिटिन इज व्हाट इज यूजुअली गिवन, और मेडिकेशंस में यूजुअली देखा गया है कि साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, तो साइको एजुकेट करो, अगर साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं तो कम करने की कोशिश करता है। मेडिकेशंस जो है वो किस किस पे काम करेंगे, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, इनअटेंशन, एंड सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है डिक्रीज एपेटाइट, विच इज नॉट गुड बिकॉज बच्चा अगर कम खाएगा तो उसका हाइट नहीं बढ़ेगा, उसका बाकी भी दिमाग का विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। तो डिक्रीज एपेटाइट, स्लीप प्रॉब्लम, हेडेक, सोशल विड्रॉल, स्टमक एक्स, ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं और इनकी वजह से हमें मेडिकेशन स्टॉप करनी होती है। ठीक है, बाकी हम नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस दे सकते हैं लाइक SNRIs और एटोमॉक्सिटिन, इनका साइड इफेक्ट कम होता है बट इनका इफेक्ट भी कम होता है। साइको सोशल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, तो बिहेवियर ट्रेनिंग ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इज इम्पोर्टेंट। देर आर सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स ऑफ कंटिजेंसी मैनेजमेंट, तो बने बनाए प्रोग्राम्स होते हैं क्लासरूम इंटरवेंशन और पेरेंट इंटरवेंशन के। अगेन पेरेंट ट्रेनिंग स्कूल बेस्ड अप्रोच है, टीचर्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, एजुकेटिंग द पेरेंट्स अबाउट व्हाट इट इज एंड हाउ पेरेंटिंग स्किल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइट से या विटामिन दे के हम ADHD ठीक कर सकते हैं क्या? तो वेल बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा कोई प्रूवन ये नहीं है कि विटामिन से ADHD ठीक हो जाएगा। सो यस, डाइट इज इम्पोर्टेंट बट not as important as medication or other therapies. So in summary, parent skill करो, educate करो, environmental training दो, very rarely you give treatment. Coming to autism spectrum disorder, ऑटिज्म जो है उसका कोई क्योर नहीं है, तो अगेन हम जो थेरेपीज दे रहे हैं वो मोस्टली एजुकेशन, अर्ली डिटेक्शन, साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। मेंटल रिटार्डेशन जो है उसके लिए हम क्या क्या थेरेपीज दे सकते हैं, अगेन हेल्प द फैमिली कोप, तो सबसे पहले तो फैमिली थेरेपी कराओ। अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट, स्कूल्स में यूजुअली स्पेशल स्कूल्स में हम डालते हैं, स्पेशली मॉडरेट टू सिवियर में यू पुट देम इन स्पेशल स्कूल्स, डे केयर। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं तो फिर ही हम मेडिकेशन देते हैं, क्योंकि अगेन देर इज नो क्योर फॉर मेंटल रिटार्डेशन, तो हम जो भी करेंगे वो सिम्टम्स को बस मास्क करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। Multidisciplinary approach is very very important, so a psychiatrist, a behavioral therapist, pediatrician, neurologist, सब लोग मिलके एक टीम बनाएंगे, और टीम अप्रोच इज ऑलवेज बेटर, especially in mental retardation. Communication, written, verbal, pictorial form of communication, gestures सिखा सकते हैं, and mutual understanding to improve the adherence. अगेन पेरेंट्स को ये बताना कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं या कोई क्योर है नहीं, मेडिकेशंस जो है दे आर टारगेटेड टू कोमोर्बिडिटीज और फॉर सिम्टम्स। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो वो सब रेफरल करना जरूरी है, बट अगेन दे आर नॉट क्योर, दे आर जस्ट द ट्रीटिंग ऑफ ऑनगोइंग अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ऑनगोइंग विजन, ऑडियोलॉजिकल, आपको अगर लग रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो उस हिसाब से उनके डिपार्टमेंट में यू कैन रेफर।
family education and support is the most important thing mental retardation में. प्रोग्नोसिस वाइज अगर देखा जाए तो इट इज मच बेटर, इवन दो प्रोग्नोसिस काफी पुअर है पेरेंट्स को बताना, बट उनको ये भी बताना है कि पहले के कंपैरिजन में अभी काफी अच्छी थेरेपीज और ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो द ट्रीटमेंट इज मच मच बेटर. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का कोई बेनिफिट नहीं है मेंटल रिटार्डेशन में भी, तो विटामिन वगैरह दे के मेंटल रिटार्डेशन क्योर नहीं होता है, डाइट से क्योर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है. फिजिकल एक्टिविटी एंड ओबेसिटी जो है वो काफी ज्यादा चैलेंजेस है, तो उनको फिजिकल एक्टिविटी कराना और एक्सरसाइजेस कराना ये बहुत जरूरी है. एंड मेडिकेशंस हम देते हैं एंटीसाइकोटिक्स, तो उनसे भी वेट गेन होता है, तो दैट इज व्हाई एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अडेप्टिव एक्सरसाइजेस हम करा सकते हैं अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस कराना जरूरी है. एंड विद दिस वाज द लास्ट स्लाइड. आई नो बहुत हेवी टॉपिक है और हमने काफी जल्दी जल्दी किया, बट विद दिस आई वुड लाइक टू